Good morning, children. Now, children, yesterday we have discussed about the chemical formulas. Today we will talk about chemical changes. Here, how does this chemical change takes place? First of all, we have in class 6 you all have discussed about the physical change, that when there is change in shape, size and state or color of that particular object or substance, then that is known as physical change. उसको physical change कहते हैं. लेकिन chemically how does the change takes place? Chemically the change takes place through chemical reaction. Then what is this chemical reaction? Chemical reaction क्या है? Chemical reaction, the process in which, stop talking. The process in which a chemical change causes one substance to change into another is called chemical reaction. Here this is written in a British form. You can understand in that way that when two substances combine and when a third one is formed, then that is a chemical change. Like when which two substances will combine and what is it called? The two substances which are combining, that is known as reactant, and the third substance which is formed is known as product. This is your chemical reaction. Chemical reaction. Once again, we are in the, for those who are joining late, we are in the topic chemical changes. So chemical changes क्या होता है? What are chemical changes? First of all, in class 6, you all have studied about the physical changes which are taking place. Physical means the physical appearance, color, state. These all are the physical changes. But here we are talking about chemical change. So how will this chemical change take place? The chemical change will take place by combination of two substances and formation of another new substance, that is known as these two substances which will react, they are known as reactant, and the third substance which is formed is known as product. अगर हम बात कर रहे हैं hydrogen plus oxygen, if we are talking simply hydrogen plus oxygen, they are different atoms, molecular form में है तो molecule बोलेंगे, one molecule of hydrogen and one molecule of oxygen will combine to form what? It will form water. So here hydrogen plus oxygen is what? Reactant. वो reactant है. और जो water formed हुआ, that is your product. So that is a chemical change. वही एक chemical change. We are going to discuss this point only through chemical equation. So how we are going to write the chemical equation? We are going to write the chemical equation, and for writing chemical equation, we have got one rule. एक rule होता है. The reactants are written on the left hand side and the products are formed on the right hand side for chemical, writing a chemical equation. First of all, in chemical change, what will happen? Chemical reaction will take place. Chemical reaction will take place. Then, what is the next topic? For chemical reaction to take place, there should be reactants and products. Reactant होना चाहिए और products होना चाहिए. When we are writing these reactants and products, incorrect. come on, don't talk. And that is chemical equation. That needs to be a chemical equation. This chemical equation, children, please don't discuss anything in between the class. Here, the chemical equation, in writing a chemical equation, we have to take reactants
on the left hand side, and with an arrow we will denote the product. Here, let us take one example of reactant and product, carbon plus oxygen. Very simple, product will be carbon dioxide. This is a form of chemical equation. ये एक फॉर्म हुआ chemical equation का. Like if we write H2 plus O2, we are getting H2O. Although this is not balanced. अब हम balanced पर आएंगे तो ये आपका balanced equation नहीं है. Now you understand what is balancing. Balancing क्या है? दोनों साइड, लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, दोनों साइड में आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रहना चाहिए. लाइक now, like hydrogen plus oxygen, you are seeing that here 2 atoms of hydrogen are there, or you can call 1 molecule of hydrogen is there, but you understand in form of atom. Atom के form में समझिए, H2 plus O2, 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of oxygen, but 1 molecule of water. Water का 1 molecule बना. तो उसमें क्या क्या है? What is there? 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom is there. Is both the side balanced? दोनों side balanced है? Yes, no, ma'am. नहीं है? No, ma'am. Well, those who I am unmuting, please respond because you are disturbed. That is why. Just No, ma'am. response इसलिए जा रहे हैं ताकि हमको पता चले कि आप लोग समझ रहे हो या. Here both the side when you see it is not balanced. To balance it, अब हम लोग balancing पर आ रहे हैं. Equation लिखने के बाद हम लोग balance करते हैं उसको. दोनों साइड बैलेंस होगा तभी आपका वो केमिकल इक्वेशन करेक्ट माना जाए. ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट देखो और राइट साइड का प्रोडक्ट. उसके लिए बैलेंसिंग के लिए क्या रूल है? He will put a numerical value here. यहाँ पर देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं. नीचे नहीं लिखना है. न्यूमेरिकल वैल्यू बैलेंसिंग में कभी भी किसी भी एटम या किसी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद उसके नीचे में कोई वैल्यू हम नहीं ऐड कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए. तो हमको उसके फ्रंट साइड में ही ऐड करना होगा. तो दैट इज द वी आर पुटिंग द नंबर that if this amount of that atom will be added to it, then that equation will be balanced. तो उसके लिए हमको क्या देखना है? हाइड्रोजन आपका 2 एटम यहाँ पर है, it is already present and it is also present on the right hand side, means product side. So what we have to balance? We have to balance oxygen. Oxygen is already 2 atoms are there on the reactant side. So what to do with the product side? Product side में क्या करना हो? आपको 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो ये दोनों के लिए होता है. जो भी एटम्स आपके उसके पास है प्रोडक्ट में, उस दोनों के लिए वो वैल्यू ऐड होगा. नाउ अब दूसरा स्टेप देखो. यहाँ 2 ऐड कर लिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन. Now hydrogen has become more. तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? Again we will put a numerical value 2 over here. I am just in the process, Aditi. How will you understand? अभी तो हम प्रोसेस में ही है, तो आप बोल रहे I have not understood. I'm just in the process. Listen first, have patience. Children, you all have lost patience of listening and hearing. और पूरे दिमाग से बैठो क्लास में. You all are here and there. Okay, I will just make it visible.
अब क्लियर है? इज इट क्लियर? ma'am. ओके, Yes, ma'am. अगेन आप देखिए एक और केमिकल इक्वेशन देखो. I will again see take one another example. एक और example लेंगे and we will take few examples to understand. When you will practice yourself after just listening in the class, then you will be able to just learn it. जैसे सपोज कर लो वाटर ही ले रहे थे तो वाटर ही पहले ले लेते हैं. H2 plus O2. This is your balancing of chemical equation. ये balancing चल रहा है अभी. Balancing of chemical equation. बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जिसको आपको समझना है, तो प्लीज कंसंट्रेट. इधर उधर देखोगे और इन्वॉल्व रहोगे तो नहीं समझ में आएगा. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपका इक्वेशन है. वाटर का फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट. इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज इट कॉल्ड? रिएक्टेंट. एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रोडक्ट. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर एज अ रिएक्टेंट टू मेक वाटर. वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग. तो हाइड्रोजन 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन इज also 2. Then here water formation is there which is 1 atom. लेकिन आपको देखना है कि हाइड्रोजन जितना यहाँ है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में है या नहीं, ये आपको देखना है. तो आपको क्या करना होगा? यू विल सी दैट हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. यहाँ हाइड्रोजन तो हमको बैलेंस दिख रहा है. 2 इधर भी है 2 उधर भी है. मीन्स रिएक्टेंट साइड में भी 2 है हाइड्रोजन and atom, and product side also it is 2. Then what about oxygen? Oxygen is 2 on the reactant side and product side it is 1. So we will write a numerical value over here. Balancing is also always done with putting a numerical value on the left side of that particular है. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ? इम्बैलेंस हो गया. कैसे? नाउ यू विल आस्क हाउ. देन इट इज 2 multiplied by 2. हाइड्रोजन अब 4 हो गया. इट हैज बिकम 4. तो अब क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? वी विल पुट वन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 2 ओवर हियर to balance hydrogen. Now this hydrogen is also 4 and oxygen is 2 on the reactant side and product side is also hydrogen is 4 and oxygen is 2. अब कोई दिक्कत? Anybody? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंशिका. मैम अंशिका, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैम बोर्ड को थोड़ा साइड कर दीजिए, वो साइड वाला नहीं दिख रहा है. क्या? बोर्ड को थोड़ा मूव कीजिए मैम, कैमरा को. बोर्ड. यस मैम. Is it visible now? यस मैम. Ma'am, it is visible. It is visible. I can see that it is visible. Now here till here any problem? नो Okay, मैम. let's have another example. एक और example लीजिए. Like sodium chloride formation. Sodium plus Cl2 will give you sodium chloride. ठीक है?
क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ भी याद रखना है, वो भूलना नहीं है। इट हैज टू बी कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यूड रखना है क्रिस क्रॉस मेथड। तभी आपको पता चलेगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना, बाय combination of sodium and chlorine. Listen children, if you join later, then the same topic will be repeated again and go and see the video. Sodium plus chloride will give you sodium chloride. How is this formed? By criss-cross method of sodium and chlorine. इसका एक रफ देखो यहाँ पर, सोडियम प्लस Cl2 क्रिस क्रॉस हो गया, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम Cl NaCl। क्रिस क्रॉस में यहाँ 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, so the ions will not be carried, ये कैरी नहीं होगा। हाँ बोलो। Now here आगे देखिए, I am talking about balancing over here। अभी मैं बैलेंसिंग की बात कर रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पर सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम आपको 1 है, क्लोराइड इज 2, सोडियम इज 1 over here, chloride is 2 atoms। Here sodium is also 1 and chloride is also 1। What will we do? We will put 1 2 over here। अब क्लोराइड तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम इनबैलेंस हो गया, तो उसके लिए एक 2 यहाँ लिखो। Now it has become 2 sodium, 2 chlorine, 2 sodium and 2 chlorine, because this numerical value will be for both of them, दोनों के लिए। Yes, Sally Tiwari, what you have? What problem you are having? Just wait. Shelly, what's the problem? मैम अगर हम लोग Cl2 को फर्स्ट में लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे प्लस 2Na, तो रिजल्ट रॉन्ग आएगा। Pardon, I can't get your question. एक बार और बोलो। मैम जैसे रिएक्टेंट्स अगर मैं जैसे रिएक्टेंट लिखेंगे Cl2 प्लस 2Na, तो आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वो रॉन्ग होगा। Cl2 क्या लिखे? I just am not getting your question. Cl2 प्लस 2Na, हाँ बोलिए। Cl2 प्लस 2Na। प्लस 2 क्यों लिखेंगे? Why we will write? मैम प्लस Na भी होगा, तो मैम अपोजिट करके अगर ऐड करेंगे तो आंसर गलत आएगा। हाँ, आंसर क्या आना है इसमें? प्लस लिखना ही नहीं है इसमें, तो सिंपल फंडा आपको हम यहाँ रफ भी करके बता दिए कि ये क्रिस क्रॉस होके सोडियम क्लोराइड बनेगा। जो पहले का स्टेप है उसको भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, उसको कंटिन्यूटी में आना है, उसको याद रखना है कि हमको क्रिस क्रॉस मेथड से ये फॉर्मूला बन रहा है। ये दोनों क्रिस क्रॉस होकर सोडियम क्लोराइड बना। मैम ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है? तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन याद करोगे ना। अभी हम चैप्टर ये पेज नंबर 34 35 लर्न करने बोले हैं ना। मैम मेरे पास बुक नहीं है, मैम पीडीएफ नहीं कोई मुझे सेंड कर दे रहा है। आप डाउनलोड करिए, दैट इज योर प्रॉब्लम। You all don't purchase the book, you don't download from the net, and without book you are sitting in the class, you will not understand anything। हम तो आप पढ़ने के बाद आपको जो भी चाहिए, आप ओल्ड बुक भी यूज कर सकते हो, कोई भी ओल्ड बुक यूज करो, और यू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स की 2-4 पेज जो उस चैप्टर का है उसको आप पीडीएफ बना के मंगवा लीजिए। Without book in science you can't handle। आपको बुक के बिना समझ में नहीं आएगा। ओके, आप डाउनलोड करिए या अपने फ्रेंड से हेल्प लेके उसका पीडीएफ, या फिर आप वेब पर देखो ना, स्कूल के वेबसाइट पर होगा। मैम नेट पे बस 2 चैप्टर दिए हुए हैं। You take help of your friends।
send it. नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2SO4. Now this is a complicated one. Plus sodium hydroxide will give you Na2SO4. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें दूसरा रूल चल रहा है. अब देख लो यहाँ पे 2H2, ये 2 बाद में लिखते हैं. नाउ यहाँ देखिए, अब इसमें मैम थोड़ा राइट साइड advance- का बोर्ड विजिबल नहीं है. अभी जो हम बता रहे हैं ये उससे थोड़ा एडवांस ये आपका इक्वेशन है. इसमें एसिड भी है और बेस भी, वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है. तो हियर व्हाट विल हैपन, कैसे ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, इसके लिए आपको हम एक रूल बता रहे हैं. दिस इज अ रूल. पॉजिटिव आयन किसी भी कंपाउंड में, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ओपन टू पेज नंबर 34. 34 आप ओपन करो और उसमें देखो, यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है. सोडियम 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अगेन. तो दिस इज द रूल that positive will combine with the negative. Positive will combine with negative. यहाँ ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, और तब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका फिर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव. यहाँ क्या होगा, अगेन क्रिस क्रॉस मेथड विल बी फॉलो. H2OH that will combine to form water. ये वाटर बन गया, और Na इसका 2 ले लिया और सल्फेट का 1, Na2SO4, criss cross, and the product which is formed is sodium sulfate. This is the product formed is sodium sulfate and water. एक H यहाँ है, 2 H यहाँ है. अब इसके बाद का स्टेप देखिए, ये तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ. हाउ विल इट बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस कैसे होगा. सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, वाटर यहाँ हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है. तो ये सबको देखना है अलग अलग. तो पहले देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आपका 3 है, हाइड्रोजन इज 3, सल्फेट इज 1, सोडियम इज 1. क्लियर. यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, सोडियम सल्फेट 1 and sodium 2. Is this equation balanced? इसको हम लोग बैलेंस्ड कहेंगे? नो मैम. नहीं कहेंगे. तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम एक फ्रेश इक्वेशन, सेम इक्वेशन को नीचे लिखते हैं. H2SO4 plus sodium hydroxide will give you Na2SO4 plus water. बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट. तो H2 तो दोनों में H2, यहाँ H3 है. पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ Na2 है तो 2 लिख दो यहाँ पे. अब क्या हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 and 2 4 हाइड्रोजन. लेकिन आपको यहाँ बैलेंस करना होगा. दिस वन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम एंड 1 सल्फेट. अब देख लो, कैलकुलेट करो. हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, 2 यहाँ हाइड्रोजन है, 2 यहाँ है, 4 हो गया. सल्फेट इज 1 and oxygen 2. O is 2 and Na.
Na is 2. ये रिएक्टेंट साइड में होगा। प्रोडक्ट साइड में देखो, सोडियम 2 और यू कैन राइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, 4, सल्फेट 1, ऑक्सीजन 2 and sodium 2. Now is it balanced both the side? Yes, ma'am. अब बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। You have to practice all the different types of equations which are given in your book, जो आपके बुक में दिया हुआ है, और उसको बैलेंसिंग भी सीखना है। तो ये कैसे आएगा? How will it come? It will come through practice. प्रैक्टिस से आएगा और आपको बार बार उसको लिख कर। Yes, अभिज्ञा, what is your question? Yeah, tell. यस मैम। मैम आपने इस इक्वेशन को मैम इक्वल कैसे किया मैम, वो फिर से बता दीजिएगा। इक्वल देखो, सेम इक्वेशन है, यहाँ तो क्रिस क्रॉस मेथड से वो कंपाउंड बन गया। कंपाउंड यहाँ बना क्रिस क्रॉस मेथड से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फिर मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इधर अनबैलेंस्ड इक्वेशन का ये एटम लिखा। हाइड्रोजन 3 था, सल्फेट 1 था, सोडियम 1 था, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिख लो। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब और यहाँ पे भी 1 है। ये इम्बैलेंस्ड है। दिस इज इम्बैलेंस्ड। ये आपको इम्बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर जो हम आपको बता रहे हैं। नाउ हियर आई एम बैलेंसिंग। इसको हम बैलेंसिंग के लिए फ्रेश लिखें। तो पहले देखें कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो और यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं 3 था, 2 and 1 3 हाइड्रोजन था। तो उसको अब बैलेंस करने के लिए 3 तो हमने ऑलवेज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आप यहाँ 2 3 ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 कोई भी इन फ्रंट ऑफ दिस लेफ्ट साइड। तो अगर हम यहाँ 2 ऐड करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो 2 2 जब 4 हो जाता है, तो फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम सोडियम देख रहे हैं, तो सोडियम 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो हाइड्रोजन और सोडियम दोनों बैलेंस्ड हो जाता है। यस मैम। हो गया। यस मैम। और व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन आपका 4 है, 2 and 2 4. 2 1 you can see that by adding one numerical value, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने से आपका 2 एटम बैलेंस्ड हो जा रहा है। यहाँ सिर्फ हम 2 लिखे तो सोडियम भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यस मैम। अब सल्फेट तो लेफ्ट साइड में 1 है ही, तो राइट साइड में भी 1। बस ऑक्सीजन इस 2 को लिखने से, ये वाला 2 लिखने से आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन। तो वी डोंट हैव टू ऐड मोर नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर ऐड नहीं करना है, केवल कैलकुलेटिव करना है। देखना है लेफ्ट साइड कितना हमको ऐड करेंगे तो बैलेंस होगा, या राइट साइड में कितना नंबर ऐड करेंगे, ये आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आपको हर एक इक्वेशन में ये चेक करना पड़ेगा। इट कैनॉट बी लर्न, ये आपको याद करने से नहीं होगा। आपको वहां पर देखना है कि रिएक्ट करने के बाद जो क्रिस क्रॉस मेथड से प्रोडक्ट बनाया है, उसमें दोनों साइड बैलेंसिंग में कितना हमको नंबर ऐड करना है, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करना है। मैम प्रोडक्ट को हम लोग को लर्न करना होगा ना मैम, किससे किसको करेंगे तो वो प्रोडक्ट आएगा। नहीं उतना प्रोडक्ट याद नहीं किया जा सकता बेटा। आपको हम बताए ना, जब रिएक्टेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट खुद फाइंड आउट कर लेना। जैसे मान लो यहाँ सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो आपको तो नहीं पता है, हमको भी मान लो नहीं पता है,
तो हम क्या किए कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन को कंबाइन करवाए। आपको ये हमेशा याद रखना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, और किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में वन एटम उसका पॉजिटिव होगा या वन एलिमेंट पॉजिटिव होगा और दूसरा आपका निगेटिव होगा, तभी कोई फॉर्मूला बनता है। विदाउट दैट फॉर्मूला पॉजिटिव का फॉर्मूला नहीं बनेगा। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव का ही सिर्फ फॉर्मूला होता है। हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव का ही फॉर्मूला बनेगा, तभी वो मन से देना है। होता है। हाँ, मैम वो अपने मन से देना है। क्या मन से देना? मैम पॉजिटिव मन से क्या निगेटिव दो? का साइन नहीं, आपको अभी वो प्रैक्टिस करना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, अपने मन से नहीं लेना। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो देखोगे कि जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन है उसमें एक एटम आपका पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, वो आपको अभी लर्न करना है। दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको देखना है कि रिएक्शन किस तरह से होता है। जैसे आप किसी तरह से एब्सर्ड इक्वेशन नहीं बना सकते हो। लाइक आप सपोज कर लो, हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी ले लो, अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें आपको देखोगे जब वो कंबाइन करता है तो वन एटम पॉजिटिव है तो नेक्स्ट एटम निगेटिव है। दिस विल बी देयर। तो ये इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू विल प्रैक्टिस देन इट विल कम। क्लियर? यस मैम। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस There are 4 types of chemical reaction. There are 4 types of chemical reaction. ये आज सिर्फ आप लोग नेम जान लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. First is your name को ध्यान से पढ़ना, combination reaction. इसका मतलब क्या हुआ? Combination का मतलब क्या होगा? Two or more substances will combine to form product. There will be a combination of two or more substances, है ना? तभी इसका नाम combination reaction रखा गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ दो क्या हो रहा है? कंबाइन करके क्या बना रहा है? वाटर का फॉर्मेशन। दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? A chemical reaction in which two or more substances combine to form a single reactant, that is known as combination reaction. Then second one is decomposition reaction. Decomposition का मतलब क्या हुआ? आप लोग बायो के साइंस में decomposition पढ़े हो? यस पढ़े हो ना? उसमें क्या होता था? मैम इन विच मोर देन वन ब्रेकिंग ऑफ द कंपोनेंट। हम लोग क्या बोलते थे? बैक्टीरिया वायरस ब्रेक करता है फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म्स में। तो हियर आल्सो द कंपाउंड इज ब्रोकन। तो जैसे सपोज कर लो यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ, सेम एग्जांपल ले लिए, वाटर विल जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, when electric current is passed, then it will decompose into H2 plus O2. Okay? आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? There is a breaking. ये एक reactant है, reactant साइड में लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है। एक कंपोनेंट ब्रेक कितना कंपोनेंट बना रहा है? दो कंपोनेंट। हम दो कंपोनेंट। One component is breaking to form two components. That means it is a decomposition. There is a breaking of one component into two components. Clear? Is it clear?
Yes, ma'am. Can you repeat once more? Yes. Once more, you can see that decomposition means there is a breaking of the single component into double component. या more than double. कभी कभी more than double भी होता है. उसका एक और एग्जाम्पल ले लो. कैल्शियम कार्बोनेट. जब आप हीट पास करवाओ इसके ऊपर, हीट करो, तो ये ब्रेक करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide. यहाँ one component है, it is breaking into two product which is